सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। Hello, friends. Today's our guest is the young and a beautiful girl, Divya Tater. Divya's journey began at temporary school with Zak. Along with meticulously performing well in academics, she always had a flair for skating. Divya started with speed skating, but soon realized her love for artistic skating. Her ability to jump, spin, and dance in skates impressed everyone. She started to compete professionally at the age of 13. After winning a couple of skating championships at the district and state level, she represented the Andhra Pradesh state for the roller skating national starting 2010. Her parents were always supportive, inspired her to pursue skating. She had the best coaches in the country for artistic skating. Along her journey, ice skating also attracted her, and she started competing professionally for both roller and ice skating. Divya has won more than 4 dozen medals competing in roller and ice skating at various levels. In 2013, Divya represented India at the ISU World Development Trophy for figure skating in Manila, Philippines. She started studying computer science engineering at Christ University, Bangalore in 2015, but her passion for skating did not take a break, and she started coaching other kids at her practice rink in Bangalore. She trained a team to compete at the National Ice Skating Championship, and figure skating team for Karnataka was in the Ice National for the first time. After 2 years at the Christ University, Bangalore, Divya is selected for a student exchange program to complete the rest of her engineering degree at Catholic University of America, Washington, D.C. Divya was an active student at the International Students Association and showcased India's diverse culture. Divya is currently working as a team lead at Ernst Young Company, one of the big four accounting firms for identity and access management in the cybersecurity domain. She is achieving a new milestones in her professional career and recently bagged an award for outstanding performance. So let's welcome. नमस्ते दिव्या, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? So I'm good. बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया का फ्लैग है आपके पीछे। मेरे बेड के ऊपर हमेशा रहता है। क्या बात है? Reason? Just won this at a competition. यहाँ पे COA Olympics करके था, so I just won that there. Okay, where are you right now? मैं यहाँ पे फिनिक्स एरिजोना में 1 साल से हूँ। बिफोर दिस आई वाज इन वॉशिंगटन डीसी। मैं वॉशिंगटन डीसी आई थी पढ़ाई करने के लिए टू कंप्लीट माय इंजीनियरिंग। मेरा इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ था बैंगलोर में इन 2015। आई डिड 2 years ऑफ इंजीनियरिंग एंड उसके बाद में एक एक्सचेंज प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गई थी मैं, तो उसके लिए आई वाज आस्क्ड टू कम टू वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म। Divya, you are good at jump, spin and dance. बचपन में स्केटिंग करती थी एंड ऐसे ही पार्क में मैंने देखा कुछ लोग स्केटिंग करते हैं, आर्टिस्टिक स्केटिंग करते हैं, जंप, स्पिन्स, डांस एंड पापा बोला, पापा ये तो बहुत बहुत सो फैसिनेटिंग, सो आई जस्ट वांट टू डू दिस। सो या पापा ने उसमें डाला एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगन। आपने आइस स्केटिंग के नेशनल और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों में पार्टिसिपेट किया। शेयर एनी गुड और बैड एक्सपीरियंस? बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के लोगों से मिली एंड उन लोगों के साथ रही। मेरा फर्स्ट ऑटोग्राफ उस टाइम पे हुआ एंड मैं 2013 में मुझे आइस नेशनल्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था एंड देन after 2 months, I just got a call कि Divya, you've been selected to represent India at the World Championships for ISU World Development Trophy.
So that was really amazing. And then 10th के बाद तुरंत board exams के बाद I had to go there. And वहाँ पे it was beautiful. Like everything was in the Olympic style. So Olympic style में ऐसा होता है कि Olympic games या Asian games में the roommates are not from the same country because they want कि सब लोग अपने अपने देशों के बच्चों के साथ नहीं दूसरे देशों के बच्चों के साथ में मिक्स अप हो जाए, उनका कल्चर जाने. तो बिल्कुल वैसा ही था मेरे उधर भी. I had my roommate from Uzbekistan and she did not know English. तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी because even to turn off lights and stuff हम लोग sign language में बात करते थे. हम रात में after practice sessions we used to just sit down and Tom and Jerry देखते थे because उसमें कोई language नहीं चाहिए. So that was a very बहुत सही experience था. I was so amazed to see कि दूसरे लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया के कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं. They are so fascinated about the food in India, the Taj Mahal, the colors. उन्हें लगता है कि इंडिया में बहुत बेहतरीन colors होते हैं. So yeah, it was so much fun. So you won gold medal for synchronized skating. हाँ, synchronized skating ऐसा है कि हम सारे स्टूडेंट्स सिमिलर मतलब हम हमारी लैंग्वेज समझते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ये टर्न लो वो टर्न लो. तो इट्स इजी दैट वे. एंड हम लोग पहले ये करते, सीनियर स्केटर्स 2-4 जन मिलके हम एक सेट बना लेते हैं, पूरा कोरियोग्राफ कर देते हैं. काफी बार कोई टीचर कोई डांसर मॉम्स होती हैं, स्केटर्स की पेरेंट्स होते हैं, तो वो लोग थोड़ा हेल्प कर देते हैं. तो ये वाला जो मैंने मेडल जीता था उसमें मैंने टीम लीड किया था. सो फर्स्ट वी मेड द एंटायर थीम. हमने मोदी जी का थीम बनाया, फिर उसको कोरियोग्राफ किया. एंड देन इट वाज वेरी इजी फॉर अस कि बच्चों को समझाना कि अच्छा ये स्टेप करो, ऐसे करो. एंड थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, बट हो जाता है. इट्स अ लॉट ऑफ फन दो, बहुत मजा आता है. स्केटिंग ट्रेनिंग भी देते हो आप? स्केटिंग ट्रेनिंग सो ऐसे बचपन में तो डांस कोरियोग्राफ कर देती थी मैं अपने जूनियर स्केटर्स के लिए जब मैं वाइजैग में थी. एंड बस वही डांस स्केट्स पे कैसे कन्वर्ट करना है, क्या जंप्स ऐड करने हैं, क्या एलिमेंट्स ऐड करने हैं, वो तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाता था. सो उसको मैंने कभी ट्रेनिंग के तौर पे देखा नहीं. बट जब मैं वाइजैग से बैंगलोर इंजीनियरिंग करने के लिए गई, तब मैंने देखा कि मेरे घर के पास एक अच्छा खासा स्केटिंग रिंक था एंड आई यूज्ड टू जस्ट गो एंड प्रैक्टिस देयर. फिर मुझे एक दिन एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आके बोली कि दीदी आपके जैसे स्केटिंग करना ही मेरा सपना है, मुझे बहुत पसंद है, आप जिस तरह से स्पिन करती हो, डांस करती हो, बहुत अच्छा लगता है आपके जंप्स. तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग भी करूंगी, क्योंकि वहां पे आर्टिस्टिक स्केटिंग के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था. दे वर ओनली डूइंग स्पीड स्केटिंग. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं कोच भी करूंगी. एंड वहां पे जो कर्नाटका स्टेट के ऑफिशियल्स थे उन लोगों से बात करी मैंने. एंड फिर हम लोग ने एक टीम फॉर्म की एंड आई टुक दैट टीम टू द नेशनल चैंपियनशिप्स. एंड दैट्स हाउ कर्नाटका पहली बार आइस नेशनल्स में आया. सो फॉर फिगर स्केटिंग. Okay. So you play rugby league और rugby union, क्या play करते हैं आप? Rugby was from college, so it was Catholic University of America women's rugby team में participate किया था मैंने. You won the game or lost the game? Oh, we played a lot of games. बहुत सारे games जीते, कुछ tournaments हारे भी. But it was all a team game. Team spirit था. हम लोग team bonding होती थी and बहुत मजा आता था. Yeah. So you like most rugby और skating ज्यादा अच्छा लगता है?
मुझे दोनों अपने अपनी जगह सही लगते हैं. रग्बी इज अ टीम स्पोर्ट, तो टीम स्पिरिट आती है, और वो टीम टीम का वैल्यू, टीम का वो समझ आता है. स्केटिंग इज अ सोलो स्पोर्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम पूरे रिंग को यूज कर रहे हो. यू नॉट जस्ट स्केटिंग एट वन प्लेस एंड यू आर केटरिंग टू द ऑडियंस ऑन ऑल 360 डिग्रीज. तुम सिर्फ जजेस के सामने नहीं परफॉर्म कर रहे हो. So you have to have that planning as well. तो दोनों में अलग अलग ये है. मुझे दोनों बहुत पसंद है. राइट. यू नो व्हाट इंटरेस्टिंग कि मैंने भी स्केटिंग किया हुआ यूएस में, रोलर स्केटिंग किया. यस. नाइस. मैं कब, कहाँ? रॉचेस्टर में थी, वहां पे किया था रोलर स्केटिंग. अभी तो ट्राई नहीं करती. इंटरेस्टिंग है कि मैंने 10th स्किप किया, इंडिया का 10th वहां पे किया मैंने. सो वाओ. इंडिया का 10th तो कितना डिफिकल्ट है. सो आई वाज लकी. Yeah, you got lucky. तो आपके स्पोर्ट्स स्कोर भी बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक स्कोर्स भी बहुत अच्छे हैं. आई गेस अभी भी आपने कुछ अवार्ड लिया है ना? Yeah, so recently मैं अभी EY में काम करती हूँ. In the cyber security domain, identity and access management, IAM मेरा platform है. So we just deal with digital identities. सारा organization का data वगैरह identity से related हम लोग manage करते हैं. And we use platforms like Ping, Okta, Saviynt, SailPoint. ये सब पे हम काम करते हैं. Recently I just got an award. उसको कहते हैं Bravo Award. मुझे मिला for demonstrating technical skills for giving a great solution to the client. So that was. Yeah, you got so many awards. So congratulations. Thank you. So you are a yoga trainer too, right? Yep. So you teach yoga there? So I got a yoga certification, like yoga का diploma लिया था मैंने आंध्रा यूनिवर्सिटी से जब मैं इंडिया गई थी छुट्टियों में. ऐसे ही किया था, छुट्टियां थी, and it was a lot of fun. It was a yoga teacher training का thing. We gave an exam, written and oral and everything. And यहाँ आने के बाद में I just used that certification. I got a job as a yoga trainer in the university gym. So बहुत बेहतरीन experience था वो भी. It was like a kind of a fusion. मैं योगा के साथ थोड़ा skipping भी कराती थी depending upon the audience. थोड़ा light Bollywood music लगाती थी, थोड़ा breathing exercises करवाती थी. Just depending upon कौन आ रहा है, कैसे आ रहे हैं. That way it was a lot of fun. Yeah. Any Indian song जिस पर स्केटिंग करने का सपना है? मुझे a lot of Indian traditional songs जैसे ढोल नगाड़ा संग ढोल बाजे वो सब पे करना पसंद है. But if you ask one favorite song, I'll go with सुनो गौर से दुनिया वालों. मेरा favorite है. अरे वाह. It's World Championships में it just gives me a different feeling कि अरे वाह. आप अपनी कॉलेज में इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन में भी एक्टिव है? कॉलेज में मैं यहाँ पे अभी अमेरिका में हूँ. मैं हर सेकंड इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ. इवन इफ आई गो टू अ मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट, कहीं पे भी. यहाँ पे मेरे तो कुछ दोस्त है जो इंडियन नहीं है, तो उन लोग के सामने भी, फेस्टिवल्स को लेके भी बहुत इंडियननेस. यू ऑलवेज रिप्रेजेंट योर कंट्री इफ यू आर नॉट इन योर कंट्री. सो कॉलेज में ये था कि एक होली इवेंट ऑर्गेनाइज किया था मैंने इंडियन एसोसिएशन के द्वारा. And then we had this global fest, and global fest में ये होता है कि a lot of students come in together and अपने अपने country को represent करते हैं. करीब 30-40 countries का representation हुआ था उस दिन. And हम लोग ने भी एक इंडिया का बूथ लगाया था. And हम लोग का माना जाता है कि it was the best table, it was the most interactive. हमारा सबसे ज्यादा भीड़ था हमारे टेबल पे. हम लोगों ने पहले तो एक लाइव मेहंदी डिजाइन लगाया, तो everybody like girls, boys, men, women सब आ गए थे. फिर हम लोगों ने वुमेन को
साड़ी पहना के फोटो खींचा. So like we were just putting on saris for the ladies who come in, and you know हमारी जो डायरेक्टर थी, हमारे जो टीचर्स एंड वो लोग थे, बहुत खुश हो गए. फिर हम लोगों ने एक फोटो बूथ रखा था जिसमें हम लोग ने जो हमारा मांग टीका होता है, जो बिंदियां होती है, वैसी कुछ कुछ फोटोज कट करके रख दी थी. तो दे जस्ट कम पुट अ प्रॉप एंड that was a hit. Like people were like just coming, and ये था. फिर और क्या किया हमने, लाइक बुक मार्क्स होते हैं राइट. हम लोग ने एक बुक मार्क पे जो भी आ रहा था उनका नाम एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश में लिख के दे रहे थे. मैं हिंदी में लिख रही थी, मेरी दोस्त बंगाली में लिख रही थी. सो वो बहुत अच्छा बेहतरीन एक्सपीरियंस था. और एक हमने क्विज रखा था, बहुत सारी इंडिया के बारे में चीजें एंड वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के बारे में क्विजेस रखे थे. एंड उसके गिफ्ट में हम लोग ने समोसा रखा था. तो समोसा खाने के लिए बहुत लोग आ रहे थे. सो इस तरह से बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज करी है. एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. या I want a good message from you, a tip or the good message for skating professionals. द बेस्ट मैसेज आई वुड से कि आप अगर स्केटिंग करते हो तो मेरी तरह आपको भी स्केटिंग बहुत पसंद है. सो जस्ट कीप स्केटिंग, कीप लविंग स्केटिंग. एंड सो आई स्टार्ट विद माय एक्सपीरियंस. अगर मैं एक दिन स्केटिंग प्रैक्टिस जाती हूँ और अगर मैं 10 से 15 बार गिरती नहीं हूँ रिंक में, तो मुझे लगता है मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं की. सच में. सो इट्स लाइक patience, perseverance. They say, as they say कि success is the failure is the stepping stone to success. तो अगर एक बार तुम गिरते हो किसी जंप में, किसी स्पिन में, get up. That's good news. तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तुमने अपने जंप स्पिन में कुछ चेंज किया. You're getting closer to the perfection. So don't be sad कि तुम गिर गए. Just get up and start doing. So perseverance, perseverance, patience and dedication सबसे ज्यादा important है. मैंने अपना मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप जाने के पहले मेरा ऐसा स्केड्यूल होता था कि मैं सुबह 4 बजे उठती थी. 4:30 आई वाज ऑन स्केट्स. मैं करीब 7-8 बजे तक स्केटिंग करती थी, आधा घंटा ब्रेक लेके फिर 10 बजे तक स्केटिंग करती थी जब तक धूप सर पे ना आ जाए. फिर घर जाके थोड़ी देर रेस्ट लेके लंच करके वापस 1-2 बजे आई यूज्ड टू कम बैक. एंड देन रात के 10 बजे तक करती थी, बीच में 1 घंटा ब्रेक. सो मेरा पूरा दिन स्केटिंग रिंक में निकलता था. एंड डेडिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से. जैसे कि शाहरुख खान ने कहा था कि अगर किसी चीज को पाने की कोशिश करो, शिद्दत से दिल से चाहने की कोशिश करो, तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. तो आई वुड से परसिवियरेंस, पेशेंस, डेडिकेशन is the most important thing. And trusting your team is very important. Team spirit. जैसे कोई आप टीम का स्पोर्ट खेल रहे हो, जैसे मैंने रग्बी खेला था, टीम बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and trusting your team is very important. Okay. So, and being a yoga trainer? अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, not very specific to yoga, but like in general, training is a very fulfilling experience. तो अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आप योगा सिखा रहे हो, तो just make sure कि तुम्हारा ऑडियंस कौन है उन्हें जानो. Like for me, every day मेरा ऑडियंस चेंज होता था. कोई भी randomly जिम में आया, they used to just show up, right? So you just make sure that you understand the audience, you talk to the audience, and उनका पर्सपेक्टिव लो and deliver what they exactly want. कभी कोर्स कर लिया, कभी लेग्स कर लिया, कभी थोड़ा लाइट रखा, थोड़ा फास्ट किया. So just understand, talk to your audience, deliver what they want. Make your sessions interactive always. Right. You are working as a cyber security expert, right? You know कि सभी लोग अभी ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. So what is the best message? How to stay safe? Staying safe. सबसे पहली बात,
वेरी सिंपल थिंग्स, डू नॉट शेयर योर पासवर्ड्स. मैं देखती हूँ सब लोग अपने पासवर्ड्स शेयर करते हैं, सब लोग सब लोग अपने पासवर्ड्स बहुत सिंपल रखते हैं, जैसे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम 1 2 3 4. इट्स डोंट पुट दीज पासवर्ड्स. बहुत इजी है हैकर्स को इन्हें क्रैक करना. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आई वुड गिव इज ईमेल्स. बहुत स्पैम ईमेल्स आते हैं, फिशिंग ईमेल्स आते हैं. Do not click the email if you don't know where it comes from, because that is one way hackers just hack your computer. So Okay, that's a good message. What would be the best message being an NRI? for me, I am just myself. Like movie theaters jao, restaurants jao, koi bhi festival ho, agar aapke koi friends hai jo Indian nahi hai, then just make sure you bring them in all your festivals. मेरा फर्स्ट फेस्टिवल इधर डांडिया था, एंड मेरे पास ज्यादा डांडिया के कपड़े नहीं थे, पर मेरे पास एक दो कुर्ती थी, तो आई पुट ऑन दोस कुर्तीज. अपने रूममेट्स को मैंने वो कुर्तियां पहनाई एंड उन्हें मैं डांडिया इवेंट पे लेके गई, एंड उन्हें इतना पसंद आया, इतना पसंद आया. And dance kisko nahi pasand, and the environment, the vibes that we Indians create, I think it's the best in the world. Our food is the best in the world. So I think festivals पे लोगों को उनको festivals के बारे में explain करना. So for me also बहुत सारे festivals के बारे में मालूम था, पर इतना detail नहीं पता था. So I used to look it up कि दिवाली आ रही है, so I have to tell them कि ये होता है दिवाली, ऐसे होता है दिवाली, क्यों मनाते हैं दिवाली. तो just getting closer to your roots just helps you, just talk about your culture to anybody and everybody, because सब लोगों को बहुत पसंद है. And try to compare कि so Diwali is like a festival here, like वो लोग कहते हैं कि Diwali is your Christmas, so like थोड़ा बहुत, because हम लोग दिवाली में सब फैमिली के साथ रहते हैं, सबको ये पसंद है. दिवाली is not just एक रिलीजन का फेस्टिवल नहीं है. लाइक हिंदूज का तो है ही, हम लोग जैन्स हैं, हम लोग के लिए भी डिफरेंट मीनिंग है. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट मीनिंग. लॉट ऑफ रिलीजन्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग फॉर दिवाली. सो दैट वे जस्ट अंडरस्टैंड योर फेस्टिवल्स. दैट वे दो फायदे हैं. तुम खुद के करीब आ रहे हो, यू गेटिंग क्लोजर टू योर रूट्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू आर sharing your knowledge with other people. Yeah, just eat, sleep, and talk Indian, and everything will be perfect. Great message. So Divya, बहुत अच्छा रहा. I mean, it was awesome time with you. I appreciate your time. Thank you so much. And आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया. Thank you for your time. Okay. Yeah. Bye, Divya. Bye. Yeah. Have a great day. Thank you. You too. Bye-bye. And thank you, viewers. Thank you so much for joining us.